Good morning, dear students. As yesterday we have revised the chapter, we have started the revision with the chapter solution, and yesterday we have discussed about the different concentration terms as well the Henry's law. Today we will discuss the Raoult's law and different qualitative properties of dilute solution. So let's start with the Raoult's law. So we are taking the first case in which we are taking the liquid-liquid solution. So we are going to apply the Raoult's law on the liquid-liquid solution. It means the solute and solvent both are liquid in the case. So according to the Raoult's law, the vapor pressure of component A, if two components A and B are there, so the vapor pressure of component A would be equal to the mole fraction of component A multiplied by the vapor pressure of the component A in its pure state. In the similar manner, the component B, in the component B, the vapor pressure of component B would also be equal to the mole fraction multiplied by the vapor pressure of B component at its pure state. And as the solution contains both the components A and B, both are liquid, both are volatile in nature, that's why both the liquids will exert some pressure and the total pressure would be equal to the sum of partial pressure. They may also be said as the partial pressure now. The partial pressure of component A and partial pressure of component B. Now we can place the value here. PA का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे PA नॉट XA है और PB का वैल्यू PB नॉट XB है. So we can place the value here. And then we know that yesterday we have discussed that XA plus XB, if two components are there, the sum of mole fraction of both would be equal to 1. So I can write to XA is equal to 1 minus XB. हम ऐसा लिख सकते हैं. So PA naught multiplied by 1 minus XB. To XA I have written 1 minus XB plus PB naught XB. Now by multiplying it, PA naught minus PA naught XB plus PB naught XB would be there. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में XB कॉमन है, तो XB कॉमन ले लेंगे and then XB multiplied by PB naught minus PA naught. इस तरीके से लिखा जा सकता है plus PA naught. In the similar manner, अगर मैं यहाँ XB की वैल्यू की जगह 1 minus X से लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकती हूँ. चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा XB की जगह XA कॉमन आ जाएगा, then it would be PA naught minus PB naught plus thereafter PB naught would be there. तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं. It means we can calculate the total pressure if would be asked in the numerical in case of liquid solution. So we can calculate by placing the values in the type of formula. अगर हमें solute का मोल फ्रैक्शन किसी B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो ये लगाकर कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर दे रखा है तो पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है. The next thing is, now we are seeing the case for solid and liquid solution. Here we have seen liquid solution, while in this case when we are adding non-volatile solute in a liquid solution, in that case what will happen, the total pressure means the pressure of the solution, you may say, depends only on the mole fraction of the solvent. A is the solvent here. क्योंकि हमने यहाँ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया हुआ है, इसका कोई भी प्रेशर या वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है नेचर में. तो सोल्यूशन का टोटल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट. So that would be equal to PA naught into XA. So that we have to remember in the numericals कि हमसे क्वेश्चन में किस केस के रिलेटेड पूछा गया है. So with the help of Raoult law, now we see what are the ideal and non-ideal solutions. Basically, the ideal solutions are those which obeys Raoult's law at all the conditions of temperature and pressure. तो ideal solution वो होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ का हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पर फॉलो करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो कि डेविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से, मींस उसको फॉलो नहीं करते हैं.
सो हमारा राउल्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ one component plus partial pressure of the other component, as we are talking about the binary solution in the chapter. That's why P would be equal to Pa plus Pb. We are talking about the liquid solution in the case. Okay, so ideal solution के केस में हम क्या देखेंगे? P is equal to Pa plus Pb. What kind of examples would be there in the case? यहाँ पर हम देखते हैं जब हमारा A और B दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, when interaction between AB would be same as that of interaction of AA component and BB component. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड का एग्जांपल ले सकती हूँ. तो इथाइल ब्रोमाइड में अगर मैं इथाइल क्लोराइड मिक्स करती हूँ तो इन द केस दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा वो सिमिलर टाइप का होगा जैसा कि इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल में है और इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल में होगा. सो द इंटरेक्शन वुड बी सेम इन द केस. दैट्स व्हाई जो टोटल प्रेशर बनेगा वो सम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट. जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो है जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता. नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स. या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. तो पॉजिटिव डेविएशन किस टाइप के सॉल्यूशंस शो करते हैं? जहां पर हम देखते हैं कि ए बी इंटरेक्शन यानी मेरा ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? दैट वुड बी लेस, यानी वीक इंटरेक्शन होगा जैसा कि ए कंपोनेंट या बी कंपोनेंट के बीच में है. जैसे कि मैं इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का एग्जांपल ले सकती हूँ. इथाइल अल्कोहल के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है. लेकिन जब हम इथाइल अल्कोहल में एसीटोन को मिक्स करते हैं तो क्या होगा? उस केस में इंटरेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? वीक इंटरेक्शन होगा. एंड व्हेन वीक इंटरेक्शन वुड बी देयर, उस केस में क्या हो जाएगा? हमारा टोटल प्रेशर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ two components would be increased. It would be greater than that of, यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ इस केस में Pa would be greater than Pa not XA और Pb would also be greater than Pb not XB. इसलिए हमारा जो P टोटल आएगा that would also be greater than Pa plus Pb. किस केस के अंदर? पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा. यानी P टोटल जो आएगा हमारा that would be greater than that of the sum of both the पार्शियल प्रेशर्स कंपोनेंट. अब अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा इंटरेक्शन होगा दो कंपोनेंट्स के बीच में दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू सेपरेट कंपोनेंट्स. यानी ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ए और बी कंपोनेंट के बीच का. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो उन कंपोनेंट का कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर कम होगा. और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से अब हम क्या कह सकते हैं? दैट ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. नाउ P टोटल वुड बी लेस देन दैट ऑफ Pa प्लस Pb. सेपरेटली अगर हम देखें तो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जब हम टोटल देखेंगे तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा? वो कम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B कंपोनेंट से. The another factor that we can see here is in the case अगर मैं A और B कंपोनेंट को मिक्स करती हूँ आइडियल सोल्यूशन में तो डेल V मिक्सिंग, यानी ऑन मिक्सिंग A एंड B कंपोनेंट जो टोटल वॉल्यूम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इफ सपोज आई हैव टेकन 50 ml ऑफ A कंपोनेंट एंड 50 ml ऑफ B कंपोनेंट, तो जो मेरा टोटल वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा डेल V का जो वैल्यू होगा वो 100 ml ही होगा. लेकिन इस केस में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में देखते हैं तो डेल V मिक्सिंग में चेंज आता है. इट मींस पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल V मिक्सिंग वुड बी ग्रेटर देन 0. क्या देखेंगे हम लोग? अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डेल V mixing would be greater than 0 and del H mixing would also be greater than 0. Let's see how. Del V mixing का मतलब क्या है
कि वॉल्यूम में चेंज आ जाए, दोनों को मिक्स करने पे वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। जब ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। इन द सिमिलर मैनर, क्योंकि इंटरेक्शन वीक है तो आपको उन दोनों को मिक्स करने पे आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब दैट वुड बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट मींस डेल एच मिक्सिंग वुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। इन द सिमिलर मैनर अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? दैट वुड बी लेस देन 0 एंड डेल एच मिक्सिंग वुड आल्सो बी लेस देन 0। यानी डेल वी मिक्सिंग को हम क्या देख रहे हैं, वो क्या आ रहा है? दैट वुड बी लेस देन 0, यानी पहले से कम हो जाएगा। डेल वी मिक्सिंग कम हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरेक्शन आपस में ज्यादा है। इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इसी तरीके से इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से रिएक्शन फास्ट होगी, या आप कह सकते हो कि इजीली रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि बॉन्ड इजीली बनेगा और एनर्जी या हीट रिलीज होगी। So that would be there the case of ideal and non-ideal solution with the help of Raoult's law. Now that is there in the brief. आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में Raoult's law पे एक क्वेश्चन, तो you must be knowing with the help of the graphical representation also. Now let's revise the colligative properties of dilute solution. What about the colligative properties of dilute solution? Colligative properties होती क्या है? Colligative properties are those properties which depend on the number of molecules present in the solute. यानी number of ions या number of molecules पर depend करेगा। solute के किस चीज पर depend नहीं करेगा? It will not depend on the nature of the solute. ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड ना करके नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। दैट वी सी इन केस ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देयर आर 3 कंडीशंस इन द केसेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं। पहली चीज, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मींस सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ना तो डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। No dissociation or association takes place in the solvent when we are mixing the solute. We have to take the non-volatile solute in the case. So here we are having 4 properties जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, उनको ब्रीफ में देखते हैं। The first one is relative lowering of vapor pressure. So we know जब हम कोई non-volatile solute ऐड करते हैं किसी solvent में, किसी volatile solvent में हमने क्या ऐड किया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही एस्केप होकर वेपर्स बनाते हैं, और जब उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स स्पेस ले लेते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखने के लिए मिलता है। So it may be represent like lowering of vapor pressure, PA0 minus PS. PA0 is the vapor pressure of pure solvent minus PS. PS is the vapor pressure of solution upon PA0. It means that we are discussing about the relative lowering of vapor pressure. So we see that the relative lowering of vapor pressure depends on the mole fraction of the solute. किस बात पर डिपेंड कर रहा है? केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का हम किस तरीके से लिख सकते हैं? B means solute, so that would be equal to NB upon Na plus NB. And as we are discussing about the dilute solution, तो moles of A would be greater than that of moles of B. तो यहाँ पर हम इसको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं PA0 minus PA upon PA0 is equal to NB upon Na. NB is number of moles of solute and Na is number of moles of solvent, और इसको मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
तो फाइनली वी वुड बी गेटिंग द फॉर्मूला एज WB अपॉन MB एंड WB इंटू MA, MB इंटू WA, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास. So mass of solute upon molar mass of solute. In the similar manner, here the mass of solvent upon molar mass of solvent. That is relative lowering of vapor pressure. इसको हमने descriptively देखा था कि किस तरीके से हम derive कर सकते हैं. Derivation आ जाता है इसका कभी कभी. So you'll revise yourself, and if there would be any problem, you can ask. The next is elevation in boiling point. What is elevation in boiling point? Again, what we are discussing about when we are adding the non-volatile solute in a solvent. तो जब हम कोई non-volatile solute को solvent में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डिनोट किससे करते हैं, डेल टीबी से डिनोट करते हैं. तो डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. TB is boiling point of the solution and TB naught is boiling point of the solvent. So हमने ये प्रूव किया था that del TB is equal to KB into small m. Here KB is a Beuliooscopic constant or it is also known as molar elevation constant. इसको define कैसे कर सकते हैं, that molar elevation constant can be defined as the elevation in